whiteboard as well. Okay, so ladies and gentlemen, what is the topic which I want to share with you today is, as we discussed yesterday, is the following, and the topic is which is on the screen. Today we want to configure secure passwords on router. We did it yesterday as well on switch, and we want to establish an SSH or a telnet session between the devices, which means here, for example, we want to establish a SSH connection from, if I can show you the diagram as well, the figure as well, the network as well. So simplest network is this one. So you can see here that I have a PCA, I have a router whose name has been given RTA, switch SW1. So any name you can give, not a, yesterday we took the name as SW underscore double E, R1 underscore double E, for example. So you can give the names, you can say this computer PCA as a management PC. So any name can be given, not an issue. So the topic is that we want to configure them. First thing which the author has provided us is the following. Ladies and gentlemen, he's saying that you should give an IP address, the following, as you can see on your screen. The first one is the router may have multiple interfaces. One of the interfaces is the gigabit interface, whose IP address should be this one, and this IP address will work as a gateway for both the switch as well as the PCA and many other devices, not an issue. Like your home, you may have 10, 15, whatever number of devices, and there is a single gateway. So this router is acting like a RTA, is uh, acting like a gateway for the whole, which means not only providing the routing functionality, forwarding functionality, it is also working like a gateway. Nice. Then he's saying that your PC should have and again, please look at here that the first three octets are the same for all of these three: 172.16.1, so 172.16.1. So that shows that all of these three devices, RTA, PCA, and SW1, belong to the same network because they have the same subnet mask and have the first three digits, three octets, same. The last octet belongs to the host, so, or the interface. So I can say that one is being, the first IP address has been assigned to the router, the second has been assigned to the switch, and the 10th IP has been assigned to the PC. Although we can have 254 hosts, it's our choice, whatever we want, but you have to do the planning. You may say, when we do the planning, which we'll be doing in the next chapter, the last chapter of this course, that you may say that the first 10 IP addresses, 15 IP addresses are designated only for routers. The next 50 IP addresses for switches. The next IP addresses for servers. And keeping in view the increase in the size of the network, you will place them, and then it will become a policy for your network, for your organization, and everyone will be following it. Does it make sense, ladies and gentlemen? Yes, sir. Okay, so if it is clear, so okay, then I may continue. So the first task, have you opened this document, which is 16.4.6? Yes, sir. Yes, sir. Nice. So if you can open it and you can see on your the network, the first thing he's saying, configure IP address on PCA according to the address table, given address table. So the first task which has been assigned to us, is that we should assign an IP address to our computer.
So because I'm doing this task in a, I'm performing this task on a packet tracer, but along with this, I can show you especially the switch and the router has exactly the same interfaces as whether you have a dedicated hardware or you are working in a packet tracer. But in a PCA, which is the maybe I may call it a window computer, so it may have a little bit difference. So I will make it clear for you as well. You can see on my screen, you can see probably on my screen that I can go to the here and I can click the network and internet settings. Whether my screen is shared? Yes, sir, it is shared. shared. So I click it here and may I go to the Ethernet or Wi-Fi, whatever I want, and I want what I want to assign IP address. So you can see here, change adapter options, and then I go to the Ethernet or Wi-Fi or any other device on my, which is my computer in this case. So I go to the Ethernet, I double click it, and then I go either to IP version 4 or IP version 6. So I can show you both. First IP version 4. I click IP version 4 and then press OK or press the properties. Here you can see that you have two options. One is obtain an IP address automatically. This is the condition when you have installed or configured a DHCP server on your network. That is the reason that my computer always get a new IP address when I want to connect to the network, when I boot my computer, because here it has been clearly the message is obtain IP address automatically. It's been dynamic. But what he wants from us, he wants this option, obtain the following IP address, because he has not configured a DHCP on the, in this case, definitely we need to configure it on the router then. So if we configure the DHCP, yes, then we can assign this option, obtain an IP address automatically. But in this example, in this lab, what he's saying that you should give an IP address statically. And for this, you need to give an IP address, a subnet mask, and a default gateway. No need for the DNS server for the time being. Although DNS is an important component of the networks, because you again know that DNS translates your URL into an IP address, which is very important for a network, because you cannot remember the IP address of the whole world. Does it make sense, ladies and gentlemen? Yes, sir. Okay. Now, what IP address should be given? This is the IP address for PCA, 172.16.1.10. What is the subnet mask which has been referred? 255.255.255.0. What IP address should be given for the default gateway? 172.16.1.1. So basically, if I want to work with a real computer, I have to give these three components here. I think you can see on my screen where my cursor is there. IP address, subnet mask, and default gateway. But where I have to do in this lab? Definitely on the packet tracer. So I close here. Okay. Furthermore, if I want to go to the IP version 6, exactly the same properties. Here again the two options are there. Obtain the IPv6 automatically or statically. So in this case, you don't have the, you can give 128-bit address. You can give the complete address or you can give the compressed. We have studied this in chapter number 11, if you remember. Then is the subnet mask, maybe /64, and then the gateway, IP version 6 gateway. So there are two IP addresses, based upon this, you can assign any of the address. Or even, your computer might have a both, because, yeah. So I close this and I go to the here. So this is my PCA. I think that you people are performing and it will be nice कि अगर आप मेरे साथ साथ करें.
So this is my PCA. although कि generically हमें PCA का कई चीजें अवेलेबल होती हैं, मिसाल के CLI वगैरह, तो आप उसको यूज करते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे मैं रोका हुआ है कि नहीं जी आपने आईपी एड्रेस इस तरीके से देना है। कैसे देना है कि डेस्कटॉप पे जाएं और डेस्कटॉप में आप आईपी वर्जन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं। तो आई होप यू found the two options very much similar which I showed you. Number one, through DHCP or static. If you give DHCP, these options are not available to you then. It means that then you have to request. Anyhow, ladies and gentlemen, one more concept which we have studied in chapter number 11. What? Please look at the screen carefully. I gave it static and now I click the DHCP again. Please look at the screen very carefully and then you may have to answer me. Yeah, I click this requesting IP address. You can see on the right, requesting IP address, and then he says the DHCP failed because the DHCP has not been configured on this network. That's the reason your PC is reporting you back that DHCP is not there, DHCP is failed. Getting Fakhar? Lukman, Dilaves? यस सर, मुझे भी फेल आया यहाँ पे। वेरी गुड जी। लेकिन आगे एक और लफ्ज भी आ रहा है, अपीपा इज बीइंग यूज्ड। अपीपा इज यूज्ड, यस। यस, तो मैंने, अगर आपको याद हो, मेरे वो बात अब आपको याद आ रही होगी जो चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ी थी कि अगर आपके कंप्यूटर विंडो की मशीन्स हो तो उनको आईपी ना मिल रहा हो तो वो अपने आईपी एड्रेस 169.254 की रेंज में कोई भी आईपी एड्रेस अपने लिए ले लेते हैं। तो इसने भी यहाँ पे कोई भी एड्रेस ले लिया विच इज 169.254.34.125 which is a again reserved IP address. Nice. Again, we are not interested in the DHCP in this example. We are interested in the static IP addresses. We are interested in the static IP addresses. And the IP address, looking at the table, shows that it should be 172.16.1.10. Next, 255.255.255.0, and the default gateway is 172.16.1.1. Agreed? Yes, sir. And if you want IP version 6 as well, as I showed you there, you can give the IP address here, the slash here, then the link local address, default gateway, DNS, everything is possible, ladies and gentlemen, not an issue. Okay. Then for security purpose के और भी options हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन you can see that both the options which are available in the real computer or available here in the packet tracer as well. So as our network is only responding to the IP version 4, that's the reason we are not configuring IP version 6 here. Okay, and I say close. So ladies and gentlemen, an IP address has been assigned to this computer PCA. If you can see on my screen, which I think yes, you can see that an IP address window is available to you. It is showing you that it has a fast Ethernet port which is up, and IP address has been assigned 172.16.1.10/24. And if you look at the gateway, it is again available 172.16.1.1. Agreed or not? Agreed, sir. Agreed. And we have not done the dual boot. That's the reason IP version 6 is not there. No issue, because we are not configuring our router for IP version 6.
In some class we will try this as well, not an issue. Okay, तो पहला काम हमारा हो गया. अगर पहला काम हो गया तो दूसरे काम पे चले जाते हैं. The second task which he is saying, ladies and gentlemen, is the following. He is saying that use the console. As I showed you yesterday as well, कि जो ऊपर येलो लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, that is showing you a console cable. Have you seen the console cable before or not? फखर, सर पैकेट ट्रेसर भी नहीं लेगा, वैसे ही देखें. लुकमान ने तो देखा हुआ है डेफिनेटली. आई एम ओनली आस्किंग फखर बिकॉज फखर ने हमें लेट ज्वाइन किया था. फखर, हैव यू सीन दी पैकेट सॉरी दी कंसोल केबल? हेलो फखर, आर यू हियर? चलें, probably he is not listening us. Anyhow, now what he's saying now, he's saying console into the RTA from the terminal PCA. इसका मतलब है कि वो कहता है कि डायरेक्ट RTA के ऊपर आपने नहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि let it be it is a new router. So I go to the PCA और PCA के ऊपर मैं टर्मिनल पे जाता हूँ. PCA पे किस पे जाता हूँ? टर्मिनल पे. ये टर्मिनल मैंने क्लिक किया और सारी चीजें मैंने बाय डिफॉल्ट उठा ली कि जी स्पीड इज गुड फॉर मी 9600, डेटाबेस 8 blah blah, and I say okay. So gentlemen, what I got, press return to get started. Is it? Can you see my screen, the shared screen? Yes. Yes, sir. Okay, so I press here the enter. What has been written for me? What is the instruction? Press return to get started. So I press the return, and where I am residing now, on the router. Although I'm on my PCA, which may I call as the management PC, Through this management PC, I am connected to the router through the console cable. Just for you to recall your memories, ladies and gentlemen, आपने कैसे यूज किया था? आपने एक कंसोल केबल ली थी, आपने उस कंसोल केबल के आगे एक कनेक्टर लगाया था जिसने कन्वर्ट किया था सीरियल को किसमें? यूएसबी में. यूएसबी की पोर्ट आपने अपने कंप्यूटर में लगा दी थी, और जो RJ45 की थी, मैं इसलिए चाहता था कि अगर उसने नहीं देखी हुई तो मैं उसको दिखा दूं दोबारा, फखर, लेकिन ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो हमने कहा था कि हमने वो जो RJ45 था वो अपने स्विच या राउटर में लगा दी थी. फिर हमने पुटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था. पुटी के सॉफ्टवेयर को हमने स्टार्ट किया, सीरियल की चॉइस को अपनाया, उसने हमें कॉम पोर्ट बता दी थी, यानी कि सीरियल पोर्ट. हमने डिवाइस मैनेजर में जाकर चेक किया था कि मैं किस कॉम पोर्ट के जरिए इस डिवाइस यानी कि राउटर या स्विच के साथ कनेक्टेड हूं. जो भी वहां लिखा हुआ था पोर्ट के अंदर, वही मैंने पुटी के अंदर डाल दिया था, इंटर किया था, और मैं इस जगह पे पहुंच गया था जहां पे अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है. मैंने वो सारी कहानी दोबारा से रिवाइज कर दी ताकि आपकी मेमोरीज रिकॉल हो जाए. क्या रिकॉल हुई? जी सर. गुड. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा पहला काम वो हमने ये तो बी पार्ट कर लिया जिसमें लिखा है कंसोल इनटू द राउटर फ्रॉम द टर्मिनल. टर्मिनल किसका? पीसी का, मैनेजमेंट पीसी का. फिर आप कहता है कि जी आप कॉन्फ़िगर करें होस्ट नेम एज RTA. Lukman, what is the host name, present host name of this computer, of this router? राउटर नजर आ रहा है. पहले राउटर है, फिर इसको RTA में करेंगे, इसको RT में कन्वर्ट करते हैं. वेरी नाइस. तो कैसे करेंगे? एनेबल लिखेंगे, ENABLE. तो हम चले गए, कल हमने पढ़ा था ये काम कि हम इस वक्त चले गए हुए हैं प्रिविलेज मोड में, एनेबल मोड में. हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ टर्मिनल, इंटर किया तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए. यहाँ पे हमने लिखा होस्ट नेम, और होस्ट नेम इसने कहा है कि RTA रखो, हमने भी RTA रखा. तो आपको नजर आ रहा है कि अब इसका नाम क्या हो गया? RTA हो गया है.
फिर नेक्स्ट काम क्या कह रहा है हमें, कहते हैं कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस ऑन आरटीए। पहला काम, अगर आप सी है कि डी है, डी, सी तो हमने कर लिया ना, होस्ट नेम रख लिया। डी में कह रहा है हमें कि आप इस को आईपी एड्रेस दें और जिस इंटरफेस को दें उसको एनेबल कर दें, उसको एनेबल कर दें। सबसे पहला काम, अगेन अगर उस डॉक्यूमेंट को आप देखें तो इसने मुझे बताया हुआ है कि आपकी ये कौन सी इंटरफेस के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस देना है। शाबाश, कौन बताएगा विच इंटरफेस? गीगाबिट 0x0 था सर, आई थिंक गीगाबिट 0x0, 0/0, गीगाबिट 0/0। लेकिन मैं आपको इससे पहले इससे एग्जिट करके मैं आ गया अपने इस मोड में, विच इज एनेबल मोड, और यहां मैं लिखता हूं शो इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आगे आपको नजर आ जाए कि कौन कौन सी इंटरफेसेस यहाँ पे हैं। कमांड क्या मैंने दी, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने कमांड यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटर करते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? आपको नजर आ रहा है कि इस राउटर के अंदर 2 गीगाबिट इंटरफेसेस हैं। द फर्स्ट वन इज 0/0, the second one is 0/1, and there are 2 serial interfaces. The first one is 0/0/0 and the next one is 0/0/1. इसके मतलब 4 इंटरफेसेस हैं। इसके अलावा इसमें एक अदद VLAN 1 भी है, लेकिन all of them are down. No IP address has been assigned to anyone. सेकंड कॉलम को अगर आप देखें, IP एड्रेस में लिखो unassigned. Yes, it is okay. यानी कि there is no hardware problem. And administratively that is down. Status का क्या है? Down है, क्योंकि people like you, the administrators, they have kept them down. And लाजमी तौर पे जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है तो जो भी प्रोटोकॉल इस इंटरफेस पे चल रहा है, चाहे वो इथरनेट का है, वाईफाई का है, जो भी है, लाजमी तौर पे वो भी डाउन होगा। दैट इज एग्जैक्टली अंडरस्टैंडेबल। तो इसका मतलब ये है कि पहला काम मेरा ये है इस डी टास्क में कि मुझे गीगाबिट जो फर्स्ट इंटरफेस है, गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस, इसको आईपी एड्रेस देना है। कौन सा आईपी देना है? जो मुझे टेबल ने बताया, और इसको मुझे एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन को एडमिनिस्ट्रेटिवली अप करना है। डू यू गॉट माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? जी सर। शाबाश, जहां समझ ना आए मुझे रोकें, ठीक है? तो अब मैं जाता हूं, कॉन्फ टर्मिनल लिखता हूं, कॉन्फ टर्मिनल, और मैं चला गया किस मोड में? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं इंटरफेस ग्लोबल मोड में जाना चाहता हूं, मैं इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। किस इंटरफेस को? गीगाबिट ईथरनेट 0/0। तो मैं कमांड लिखता हूं इंटरफेस गीगाबिट, आपका दिल चाहे तो पूरी लिख दें, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। मैं शॉर्ट में लिखता हूं जी, और साथ लिख देता हूं 0/0। इंटर करता हूं, तो ये मैंने इंटर कर दिया। अब आप में से मुझे बताएगा कोई कि मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो किसमें तब्दील हो गया है? config-if if, इसका मतलब है कि आई एम ऑन ए सर्टन इंटरफेस। सर्टन से मुराद यहां पे क्या है? क्योंकि कमांड आपने दी है गीगाबिट 0/0। एग्रीड और नॉट? यस सर। फखर, आर यू विद मी हियर और नॉट? चलिए, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम अब जो भी चेंज हम करेंगे वो इस इंटरफेस पे होगी। तो अब इसको पहला काम क्या कहता है? आईपी एड्रेस दो। उसने यही कहा है, आईपी एड्रेस और क्या आईपी एड्रेस दूं? अगर गलत मैं करूं तो मुझे बता दीजिएगा। 172.16.1.1 मुझे कहा गया है कि राउटर को
ये आईपी एड्रेस दो। किसने कहा है? टेबल ने कहा है। तो जब आप भी कोई प्लान करेंगे अपना नेटवर्क, तो टेबल अपने लिए खुद बनाएंगे। यहां पे हमने उसे आईपी वट एवर यू एज पर योर प्लान। सबनेट मास्क क्या देना है? 255.255.255.0। एग्रीड और नॉट? एग्रीड सर। शाबाश। अब मैं इंटर करता हूं, तो कमांड अगर कोई गलत हो तो वो नेगेटिव रिस्पांस देती है, और अगर खामोश हो जाए इसका मतलब है कि रजामंदी, इट्स गुड। और फिर क्या उसने दूसरी बात क्या की है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, इस अनेबल को अप करो, अनेबल करो। तो मैं यहां कमांड देता हूं नो शट डाउन, क्योंकि सिस्को इज वेरी इजी। जो काम भी करना हो, बंद करना है तो शट डाउन है, खोलना है तो नो शट डाउन। होस्ट नेम फॉर एग्जांपल आरटीए रिमूव करना है, नो होस्ट नेम, बस नो लगाओ। आईपी एड्रेस दिया है, हटाना चाहते हो तो अभी कमांड क्या दी? आईपी एड्रेस ब्ला 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 लिख दो, नो आईपी एड्रेस, आईपी गया। तो सिस्को इज वेरी इजी इन दिस केस। इट इज इवन CLI बेस्ड, बट स्टिल इट इज इजी। क्यों? नो लगाना है सिर्फ। तो मैंने कहा नो शट डाउन। क्या मुझे आउटपुट आया? कहते हैं चेंज स्टेट टू अप, चेंज स्टेट टू अप। इसका मतलब है कि जो ये डाउन थी, अब ये मुझे सिस्टम कह रहा है कि ये अप हो चुकी है। अगर आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं है तो खैर है, कोई बात नहीं, प्रूफ करते हैं। एग्जिट लिखता हूं तो मैं ग्लोबल में चला गया, दोबारा एग्जिट लिखता हूं, निकल गया इससे भी, प्रिविलेज मोड में आ गया। यहां पे कहता हूं शो आईपी एड्रेस, शो आईपी एड्रेस, शो आईपी ब्रीफ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और एंटर करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले वाले आउटपुट में और इसमें फर्क आपको नजर आ रहा है? पहली लाइन को अगर आप देखें, यस बिल्कुल अब आ रहा है कि गीगाबिट आपकी जो इंटरफेस है 0/0 वो अनअसाइंड नहीं रही, बल्कि उसको आईपी मिल गया है। ओके, तो वो पहले ही थी, हमने इसको मैनुअली अप किया है, मैनुअली आईपी दिया है, स्टैटिक आईपी दिया है, और इसका स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल भी अप हो गया। इट मींस लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड। तो इट मींस हमने पहला काम डी पार्ट, जो भी डी लाइन थी, वो कंप्लीटली 2 टास्क थे, दोनों अकम्प्लिश कर दिया। आईपी भी दे दिया, अब भी कर लिया, एनेबल भी कर लिया। द नेक्स्ट टास्क इज, वो कहता है जितने भी पासवर्ड हों, अगर आप डी ई पार्ट को देखें, वो कहता है जितने भी पासवर्ड हों, मेक देम इनक्रिप्टेड। द नेक्स्ट टास्क, for this, ladies and gentlemen, I have to go back to the global configuration mode. So I write conf terminal. So I am in the global configuration mode, and the command which we used yesterday is the security, for this is service password encryption. और अगर आप मेरी इस बात से अभी नहीं इत्तफाक करना चाहते तो मैं यहां से एग्जिट करता हूं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, और आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। आपको स्क्रीन पे आ गया या नहीं आया? आ गया। तो आपको नजर आ रहा है कि इसका नेम भी आरटीए हो गया है, इसका इंक्रिप्शन, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अगर मैं मोर की तरफ जाऊं, देखें अब आपके स्क्रीन पे हाईलाइट हो गया है नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो ये कहता है करो, जरूरी है। इससे क्या होता है? हार्डनिंग होती है। और अगर आप मुझे नीचे आने की इजाजत दें तो आपको नजर आएगा कि गीगाबिट जो आपकी इंटरफेस है 0/0, उसको आईपी भी मिल गया है, उसको आईपी भी मिल गया है, और उसका सबनेट भी मिल गया है, और इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 इंटरफेसेस हैं आपके पास, बाकी तमाम इंटरफेसेस लिख रही हैं नो आईपी एड्रेस। गीगाबिट 0/1,
serial 1, serial 0, serial 1, both is showing no IP address. I mean, not functional. Even the VLAN is showing no IP address. Good. जैसा भी है हमें क्या. Okay, so this was desired. तो मेरे ख्याल से अब तो मेरे आपकी और मेरी वी आर इन सिंक नाउ, वी आर ऑन द सेम पेज. आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि आपको आपके राउटर को आईपी एड्रेस भी मिल गया, सबनेट मास्क भी मिल गया, उसका नाम भी आरटीए हो गया. अब ये टास्क कह रहा है कि इसको सर्विस, इसके तमाम पासवर्ड्स इनक्रिप्ट करो. कहां पे? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में. तो आपको ऑल्दो कभी हमने कोई पासवर्ड रखा नहीं है, वो कहता रखने से पहले ही इसको कह दो सिस्टम को कि जो जो पासवर्ड रखा जाए इनक्रिप्ट होता जाए, जो जो पासवर्ड रखा जाए इनक्रिप्ट होता जाए. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वी एग्री विद द ऑथर and we give the command service. Sorry, I should go first to the global configuration mode, and here give the command service password encryption. Service password encryption, which is written on line E, step 1, line E. So here I did, and now all the passwords which will be generated by this which will be, whether it's for the console or for the enable or for the VLAN or for the VTY, all will be, or for any user, all will be encrypted. Nice. अब हम आते हैं एक और सिक्योरिटी की मेजर की तरफ, और इसके ऊपर हम एक छोटी सी आपके साथ डेमो भी खेल सकता हूं, और आपको मेंटली ये चीज समझ भी आती है, लॉजिकल है कि जितना आपका पासवर्ड का लेंथ ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है. इसका मतलब है कि आप अपने यूजर को मजबूर करें कि लंबे पासवर्ड रखें. तो यही नेक्स्ट जो एफ पॉइंट है वो कह रहा है सेट द मिनिमम पासवर्ड लेंथ टू 10. कैन यू सी लेडीज एंड जेंटलमैन? सेट द मिनिमम पासवर्ड लेंथ टू 10, ताकि कोई 8 का रखेगा, 9 का रखेगा, 6 का रखेगा, ये राउटर लेगा ही नहीं, कहेगा न की. क्या कहेगा? न की. देन तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं. हम इसको कहते हैं कि सिक्योरिटी पासवर्ड. पासवर्ड तो सिक्योरिटी का है ना. सिक्योरिटी पासवर्ड, सिक्योरिटी पासवर्ड, पासवर्ड होता है पासवर्ड मिन लेंथ कितना? आपकी मर्जी. अगर आप मुझे इजाजत दें, तो यहां पे लिखा हुआ है 10, अगर आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं छोटा रख लूं क्योंकि मुझे टास्क करना है, तो मुझे लंबे पासवर्ड याद भी रखने पड़ेंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ना. क्या मैं यहाँ पे 5 लिख लूं? क्योंकि मैं नॉर्मली रखता हूँ सिस्को, एहसान, वो मुझे फिर वो ये सब कर लेता है. यस सर, सही है सर, ये सर. तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं 5 रख लेता हूँ, और मैं आपको 4 दे के दिखाऊंगा भी कि ये नहीं लेगा, ये 4 नहीं लेगा, लेकिन मेरी सिस्को, क्लास, एहसान, ये वाले पासवर्ड ही ले लेगा, तो मुझे वो याद रखना आसान होता है. तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि मिस्टर राउटर सेट द पासवर्ड मिनिमम लेंथ 5 एंड आई से ओके. तो अब ये जो भी पासवर्ड आप देंगे 5 से कम होगा ये नहीं लेगा, 5 से कम होगा नहीं लेगा. ओके. अब नेक्स्ट थिंग हम एक और इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम यहां पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम इसके ऊपर पासवर्ड वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि अब पासवर्ड की बात की है, वो नहीं कह रहा, लेकिन हम लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब मैं ऐसे सर्च करूंगा तो अगर आपके इनके ऊपर पासवर्ड्स ना हो, स्पेशली इनेबल पासवर्ड ना हो, तो ये उधर आपको नहीं जाने देता, क्योंकि एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रीच होगा. एक बंदा सिर्फ अपना यूजर नेम, किसी से भी यूजर नेम कब्जा कर ले, चोरी कर ले, एक दफा इंटर और फिर सब कुछ करे, तो इसलिए जरूरी होता है.
तो मैं दोनों पासवर्ड यहाँ पे लगा लेता हूं। नंबर 1 कल हमने किया था लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल, स्पेलिंग गलत लिखे हैं मैंने। अगर मैं ये रन कर देता तो एक अच्छी एग्जांपल भी मेरे लिए बन जाती। एग्जांपल ये बनती है कि ये क्योंकि कमांड तो गलत हो जाती है, कंसोल की बजाय मैंने कुछ और लिख दिया था, तो इस केस में ये क्या करता कि ये अपने डीएनएस में जाके उसको सर्च करता कि हो सकता है ये कोई, अगर कमांड नहीं है तो ये कोई ना कोई यूआरएल है, तो ये मेरा टाइम जाया करता। दान तौर पे इट मे टेक 1 मिनट 2 मिनट और फिर ये वापस आता। इसलिए अगले स्टेप में मैं इस चीज को ही ब्लॉक करूंगा, लेकिन अभी मैं इसका पर पासवर्ड लगाना चाहता हूं। तो मैंने दिया लाइन कंसोल 0, इंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो कॉन्फिग से चेंज हो गया कॉन्फिग डैश लाइन पे, कॉन्फिग डैश लाइन पे। अब लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख सकते हैं कि यहां पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहां पे आ गया हूं, पासवर्ड देता हूं, पासवर्ड एहसान, ओके। मैं अपने पास नोट कर लूं क्योंकि फिर मुझे भूल जाएगा जी। हमने कंसोल का पासवर्ड कल भी एहसान रखा था, ठीक है, इंटर हो गया। कब ये पासवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए? लॉगिन पे हो गया, और एग्जिट कर जाता हूं। अब अगर मैं यहां से भी एग्जिट कर लूं, कल भी हमने ये काम किया था, आरटीए पे आ गया, एग्जिट कर गया, अब मुझे पासवर्ड मांग रहा है। और मैंने अगर एक और भी एग्जांपल ले लेता तो बेहतर था, कर लेता हूं, एनेबल लिखता हूं। चलें दूसरे स्टेप में कर लेंगे, चलें एनेबल। मैं एनेबल मोड में आ गया। अब यहाँ पे कॉन्फ टर्मिनल, तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देना चाहता हूँ एनेबल मोड को, तो ENABLE। अब आपकी मर्जी है कि आप सिक्योर पासवर्ड रखते हैं तो सीक्रेट लिख दें, और अगर आप आम पासवर्ड रखते हैं तो पासवर्ड लिख दें, लेकिन दोनों ही इंक्रिप्टेड अब स्टोर होंगे। अभी आपको दिखा भी देते हैं। तो मैं चले सीक्रेट नहीं लिखता, सीक्रेट चले, मेरी मर्जी, आपकी भी मर्जी है। पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड, और मैं यहां लिख देता हूं हक, जो कि 3 वर्ड्स हैं। इंटर करके देखता हूं क्या 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 आउटपुट आया है लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो, सर वो बाहर। हो रहा है, यस सर, मतलब 3 कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए। वेरी राइट। तो जो हमने कॉन्फ़िगर किया वो हुआ। वो अब आपको कह रहा है पासवर्ड टू शॉर्ट, मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, पासवर्ड नॉट कॉन्फ़िगर्ड। कहता है जो आपने पासवर्ड दिया है नहीं हुआ। तो इससे आपको ये बात सामने आ गई, क्लैरिटी आ गई कि जो हमने इसको कहा था कि 5 से नीचे नहीं मानना, अब इसकी वो बात पूरी हो गई। ओके, then I move to the next command and I again give the enable. And instead of Huck, I give Cisco, CISCO, and it works. It works. Okay. Now to show you, I exit from here and I can show you the running configuration. Show running config. And ladies and gentlemen, you can see here that the first thing is service password encryption. Service password encryption. Security passwords minimum length 5. Security passwords minimum length 5. The name of the machine RTA. The enable password Cisco not shown. So whatever we did, that is in the saved in the IP address of the gigabit interface displayed on your screen as per the given table. So which means जो कुछ हमने करना था, जो अभी तक हमें कहा गया, that all has been done. That all has been done.
गुड. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बाज केसेस में अगर मैं गलत कमांड दूं तो ये डीएनएस के पास चला जाएगा, डोमेन लुकअप करेगा. क्या करेगा? डोमेन लुकअप करेगा कि कोई है. तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको पहले से कह देंगे अगर गलती हो जाए कोई कमांड नहीं है तो बस निकल आओ बाय, देयर इज नो डोमेन लुकअप, नो नीड फॉर डोमेन लुकअप. तो इसकी कमांड है कि पहले हम कॉन्फ टर्मिनल पे चले जाएं और यहां पे दें, आपको बताया है कि अगर आप चाहें कोई काम तो एक कमांड दें और अगर ना चाहें तो नो लगा दें. तो मैं भी नो लगा दिया. नो आईपी डोमेन लुकअप, नो आईपी डोमेन लुकअप. देखें जी, अब ये हो गया. मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको शो की बजाय कोई गलत कमांड देना चाहूं, चलें जी, आईपी की बजाय एपी कर देता हूं, एपी एड्रेस और इंटर. क्या इसने मुझे डायरेक्ट जवाब दे दिया? इनवैलिड इनपुट. यही मैं चाहता था कि टाइप दोबारा बार बार डोमेन लुकअप मत करो, डोमेन लुकअप मत करो. तो इस कमांड का ये फायदा है. नेक्स्ट इज, हमें कहा गया है कि जब भी आपने, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं व्हेन एवर यू वांट टू कॉन्फ़िगर एसएसएच. पहला स्टेप ये है जो कि आई स्टेज में लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में कि आप का अगर कोई डोमेन है जिसमें ये राउटर काम कर रहा है, जैसे uit.com, www.com, whatever, www.uit.com कुछ भी हो सकता है, .edu.com कुछ भी हो सकता है. तो कहता है जी वो दे दो. तो उसको देने का तरीका ये है कि आपने इसको डोमेन नेम इसके लिए सेट करना है. तो इसका तरीका है आईपी डोमेन नेम का नेम रख दें. चलें जी, आप इलेक्ट्रिकल के अंदर www.com, ठीक है, www.com. आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है ccna.com, नॉट एन इशू. सो आई एंटर. सो इसका मतलब है कि ये अब डोमेन इसमें कॉन्फ़िगर हो गया कि ये इस डोमेन का हिस्सा है. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? एफ में कौन सा नंबर है? जे में कहता है कि एक यूजर बनाओ. आमतौर पर जब आप लॉग इन करेंगे रिमोट से तो कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर होना चाहिए, तो यूजर बनाते हैं. तो चलें जी, यूजर बनाते हैं. यहां पे हम लिखते हैं यूजर नेम, USER, यूजर नेम, let it be username is Ehsan, and password is, और अगर we want it to be secret तो it should be given secret, and password is Cisco. तो मैं यहां लिख लेता हूं कि एहसान का पासवर्ड, यूजर जो है, ये कल भी हमने किया था, यूजर जो है एहसान, इसका पासवर्ड है सिस्को. इंटर कर दिया तो एक यूजर क्रिएट हो गया जिसका नाम है एहसान. यूजर का नाम एहसान, उसका पासवर्ड है सिस्को. और देखें हो गया क्योंकि 5 कैरेक्टर से ज्यादा है. तो पहला काम डोमेन, दूसरा पहला काम ये इनेबल पे पासवर्ड. नंबर 2 किस पर्पस के लिए? एसएसएच के लिए. नंबर 2 आपने अगर कोई डोमेन है तो वो दे दें. नंबर 3 आप एक यूजर क्रिएट करें. नंबर 4 लाजमी तौर पे आपका टेक्स्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, किस तरह जाएगा? इनक्रिप्टेड जाएगा. तमाम चीजें बिटवीन द रिमोट कंप्यूटर, बिटवीन द मैनेजमेंट कंप्यूटर एंड यूर router in this case will move on to the channel encrypted. इस encryption के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ एक गेम खेली थी. उसमें हमने एक
गेम ये थी कि कहने का मकसद ये है कि हमने एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था इंक्रिप्शन के लिए, वहां पे हमने की इस्तेमाल की थी, अगर आपको याद हो, और उस की का अपना एक लेंथ था जो कि 512 भी रख सकते थे, 256 भी रख सकते थे, 1024 भी रख सकते थे, 2048 भी रख सकते थे, एंड सो ऑन। यहां पर भी ये कह रहा है राउटर कि जी अगर आपने टेक्स्ट को शेयर करना है तो लाजमी तौर पे उसको इनक्रिप्ट करना है, तो आप कहता है उसकी इंक्रिप्शन की जनरेट कर लो। क्या कर लो? इंक्रिप्शन की जनरेट कर लो। तो कैसे करूं? अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, द कमांड इज क्रिप्टो की जनरेट, और ये की किस एल्गोरिथम के जरिए, किस एल्गोरिथम से जनरेट हो? RSA। ये जब आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लेंगे तो हम ये एल्गोरिथम्स और ये सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन इस कोर्स में इतना काफी है कि आपको ये पता हो कि हम राउटर के ऊपर एक की जनरेट कर रहे हैं। और अभी आपको पता चलेगा कि चलें ये पहले कमांड दे दूं, CRYP क्रिप्टो की generate, and the password, the algorithm is RSA. There are other algorithms as well, but mostly the RSA is used here. ये मुझसे नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ रहा है? कहता है कितनी की रखूं इसकी लेंथ। और अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट पे देखें तो आपको कहता है कि की का लेंथ 360 से लेकर 2048 बिट तक हो सकती है। कहता है बाय डिफॉल्ट 512 में रखना चाहता हूं, आपकी मर्जी, आप इसको 360 दे दें, आप इसको 512 दे दें, आप इसको 1024 दे दें, आप इसको 2048 दे दें, व्हाटएवर। जितनी की ज्यादा बड़ी रखेंगे उतने ज्यादा सिक्योर हैं आप, देखिए उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी। तो हमारे हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं 512 इज एक्सेप्टेबल, द की 512 इज एक्सेप्टेबल। हमने इंटर कर दिया, देखिए इसने हमें जवाब दे दिया, जनरेटिंग 512 बिट RSA की विल बी नॉन एक्सप्लॉइटेबल, नॉन एक्सपोर्टेबल, यानी किसी को आप दे नहीं सकते कि आप जनरेट करके किसी को की दे देंगे ये इसी राउटर के ऊपर इस्तेमाल होगी। और साथ ओके आ गया, यानी जो आपने कहा वो हो गया, जो आपने कहा वो हो गया। क्या ख्याल है लुकमान, बात समझ आ रही है? यस सर, बिल्कुल। ओके, देन इज दी ओके। अब हम एक और टास्क, ये हमने कुछ टास्क किए जो कि आगे हमें इस्तेमाल होंगे हमारे, दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स फॉर SSH, लेकिन अभी हम उस काम को फॉर टाइम बीइंग या पहले इस टास्क को कंप्लीट कर लें और फिर इस दूसरे टास्क की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो हमने इसी टास्क को कंटिन्यू करते हैं, SSH के टास्क को। तो मैं L वाले टास्क को पोस्टपोन कर रहा हूं, M पे चला गया। तो आप, कल भी मैंने ये बात की थी कि आप किस तरह अपने रिमोट कंप्यूटर PCA से राउटर पे आएंगे, लाजमी तौर पे थ्रू ए वर्चुअल इंटरफेस, which is not a genuine real hardware physical interface, it is a virtual interface which we call as VTY, which we call as VTY। और अगर आप दोबारा कहें कि मुझे शो रनिंग करके दिखाओ, शो रनिंग, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग, तो आपको यहां पे मैं दिखा सकता हूं कि अभी तक SSH इसके ऊपर नहीं है। देखिए आपको नजर आ रहा है, यूजर एक एहसान बन गया, उसका पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड है, जो कि सिस्को है, वो आपको पता है क्योंकि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। अदरवाइज इसको कोई देखे तो उसको समझ नहीं आएगी। SSH काम करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये VTY, ये जी VTY आपको नजर आ रहा है। तो मैंने कल ही बताया था कि 0 to 15, 0 to 15 एनी नंबर कैन बी, 0 to 15 एनी नंबर कैन बी, कि आप एक वक्त में कितने वर्चुअल कनेक्शंस, रिमोट कनेक्शंस बनाने की इजाजत दे रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं
इस केस में 5 देना चाहता हूं, मेरी मर्जी एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आई गिव हिम ए कमांड लाइन VTY, लाइन VTY 0, लाजमी नहीं कि 0 आपका 0 to 3 देता हूं, हो गया ये 4 0 1 2 3 आपके डॉक्यूमेंट में 4 लिखा हुआ है, यू कैन राइट 10, यू कैन राइट ऑल 15, द मैक्सिमम दिस नंबर। पहला काम हो गया। अब इन लेडीज एंड जेंटलमैन, इस VTY वर्चुअल इंटरफेस पे रिमोटली जो आए वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करे? तो देयर आर 2 ऑप्शंस, वन इज टेलनेट, अनदर इज SSH। क्योंकि हमने की जनरेट की हुई है, टेलनेट डजंट यूज दैट एंड SSH इज नॉट इज सिक्योर। So definitely we want to give a command transport input, कौन सा प्रोटोकॉल? SSH। कौन सा प्रोटोकॉल? SSH। इंटर कर देते हैं, ये इंटर हो गया। अब ये पासवर्ड का, ये यूजर जो आए इसको कहां पे ऑथेंटिकेट किया जाए? जो अभी आपने यूजर नेम बनाया है, क्या आपका कोई अलग AAA सर्वर है? हमारे केस में नहीं है, हमने राउटर पे ही एक यूजर क्रिएट किया हुआ है, एहसान। तो इसके लिए हम इसको कमांड देंगे लॉगिन लोकल। बस ये मेरा काम कंप्लीट हो गया, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो मैं रिमोटली इस कंप्यूटर पे लैंड कर सकता हूं, इस कंप्यूटर पे लैंड कर सकता हूं। कुछ बात समझ आ रही? Yes, Arvind. ओके। अगर आप मेरी इस बात से, लाजमी तौर पे मैंने कह तो दिया, जुबानी कलामी है ना, क्या फर्क पड़ता है? शक भी तो करते हैं, वाकई कर भी सकते हैं या मजाक कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं PCA पे गया, देखिए मैं PCA पे गया, ये, और यहां पे मैं ये जो कंसोल है इसको खत्म करके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, CMD जिसे आप कहते हैं, और यहां से देता हूं SSH करो -L, यानी यूजर नेम को इस्तेमाल करते हुए -L, यूजर नेम है एहसान, और पासवर्ड जिसके पास में जाना चाहता हूं वो RTA है, जिसका IP एड्रेस है 172.16.1.1। इंटर करता हूं, पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड क्या रखा हुआ है? सिस्को, CISCO। देखिए जी, अब मैं किस कंप्यूटर से कमांड दे रहा हूं? अगर आप यहां ऊपर देखें तो आपको नजर आ रहा है PCA, लेकिन मेरी प्रॉम्प्ट मुझे क्या बता रही है? मैं कहां पे हूं? RTA। इसको कहते हैं रिमोट लॉगिन। मैंने रिमोटली कनेक्शन बना लिया है। अब यहां देखें, मैं कमांड देता हूं enable, ENABLE। देखें पासवर्ड मांग रहा है, हमने वहां enable पे पासवर्ड लगाया था, अगर आपको याद हो। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली दैट पासवर्ड वाज सिस्को, तो मैं सिस्को का पासवर्ड देता हूं। देखें जी, मैं हैश पे चला गया, यहां पे मैं लिखता हूं कॉन्फ टर्मिनल, मैं टर्मिनल पे आ गया, जहां पे मैं कमांड देता हूं नो होस्ट नेम, फॉर एग्जांपल नो होस्ट नेम या राउटर का नाम, होस्ट नेम से दोबारा राउटर बन गया, दोबारा मैं इसका नाम रखता हूं होस्ट नेम RTA, दोबारा नाम RTA हो गया। तो मैं बैठा हुआ हूं PCA के ऊपर, कमांडें रन कर रही हैं राउटर RTA के ऊपर। इसका मतलब है कि जो हमने कहा, शायद ये काम आपने पहली दफा किया होगा लुकमान, इससे पहले आपने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी, लेकिन अब आपको देखें, आप कराची में बैठ के पेशावर के राउटर को थ्रू दिस SSH
सब कुछ कर सकते हैं। क्यों लुकमान, इससे पहले किया था? ये सब नहीं पहले कि ये ट्राई काम नहीं किया किया। था? 9 साल। तो चलें, तो आज आपने एक और स्किल सीख ली कि आप रिमोटली बैठ के भी दुनिया के किसी भी राउटर के ऊपर, स्विच के ऊपर काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई को, इसलिए तो हम आज कहते हैं कि हमारी जॉब्स इसलिए भी अट्रैक्टिव हैं क्योंकि हम घर से बैठ के दुनिया के नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। हमें नहीं पैसे सर, दो। ये तो सर अगर राउटर को अलग करे किसी और नेटवर्क का राउटर कर, नहीं तो इसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है सर। नो, ये कोई डायरेक्टली कनेक्टेड की जरूरत नहीं है। अब आप इंटरनेट के जी सर, ये ऊपर तो हैं। अप हुआ है ना सही, तो इंटरफेस अप हुआ है, कनेक्ट हुआ है ना। अब अगर एक किसी और नेटवर्क को फिर उसको भी इसी तरह करेंगे बिल्कुल करेंगे। अगर तो बस अगर वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में है या आपको आप उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको जो ओनर है वो आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेगा कि जी एसएसएच का ये है, वहां से बैठ के और यूं ही दें एसएसएच जैसे मैंने अभी दिया, और यूजर नेम दें और उसकी टारगेट का आईपी दें, आप उसमें लैंड कर जाएंगे पासवर्ड देकर, और फिर जैसे आप चाहिए। इट डायरेक्टली कनेक्टेड इज नॉट एसेंशियल, नॉट एट ऑल। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड से ही करना है लुकमान, तो फिर तो कंसोल केबल लगा के क्यों ना करूं। मेक सर, तो सेंस? मैं यही बोल रहा हूँ ना सर, यहाँ पे तो कंसोल केबल लगा हुआ है इसलिए सर डायरेक्ट हो रहा है सर। मतलब अगर अब हम दोबारा इसी क्या मैं एड्रेस कंसोल पर, केबल इस्तेमाल कर रहा हूं? ये सर क्या मैं मैं बोल रहा हूँ। टर्मिनल, आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी आप जी ये कंसोल केबल मत इस्तेमाल कीजिएगा, जी और आप यही फिगर कॉम्प्लेक्स फिगर बना लें, जो मर्जी करें। देखें आपको कोई छोटी सी एग्जांपल दोबारा देता हूं लेडीज एंड लुकमान। थ्रू दिस टर्मिनल व्हेन आई इंटर आई से ओके, आप देख सकते हैं आई एम हियर नाउ। दिस इज समथिंग थ्रू द टर्मिनल which means through the console cable. Here this your light blue color cable जो है that will come into play. You have closed this, crossed it. Now you are on the CMD. On the CMD you have entered the command, this one, SSH. If you want to exit from here, exit, print here exit जब और इंटर कर दें, आप देखें आप यहां से एग्जिट कर गए। ओके, अब सर मैं सर फिर एक मिनट SSH सर, का, यहाँ से ये सर अभी तो राउटर में लॉग इन हुए ना सर। अगर राउटर कभी लॉग आउट कर दे ना और ये दरमियान में ये कंसोल केबल डिलीट कर दे, तो फिर दोबारा फिर सर लॉग इन करके सर जरा करवा दें। जी बिल्कुल। अब मुझे ये नहीं पता कि इससे अगर मुझे दूसरी वो बना लेनी चाहिए फिर, क्योंकि ये शायद कि इसने ये फीचर्स कंट्रोल करके देख लेता हूँ। बाजू को तो फीचर को वो कर देता है कि ये कहता है डू यू वांट टू डिलीट दिस, यस, रिमूव इज लॉक। अब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कहता है रिमूव की इजाजत नहीं है। तो उसने इस एग्जांपल के अंदर ये चीजें फिक्स की हुई हैं। लेकिन अगर आपको शक है तो मेरे ख्याल से ये फिगर तो 5-10 मिनट में बनती है। 10 मिनट भी बड़ी चीज है, 5 मिनट में बनती है। तो आप बना लें, और अगर ना चले तो लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है मैं पीसीए पे हूँ, और पीसीए के ऊपर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ। जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त तक किस कंप्यूटर पे लैंड कर रहा हूँ, पीसीए पे ऊपर। मैं तो कोई कंसोल केबल के ऊपर नहीं गया, कंसोल केबल मैंने रिमूव कर दी इन अदर वर्ड्स। अब आप लाहौर से, कराची से बैठ के, लेट करें पेशावर के आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप पेशावर में चीजों को मैनेज कर रहे हैं, यस इट विल वर्क। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एसएसएच, दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेलनेट। टेलनेट एंड एसएसएच डजंट रिक्वायर योर कंसोल केबल। अब बात समझ आ गई? यस सर, जी सर। तो आप क्योंकि मुझे टास्क कंप्लीट करने का शौक है कि आज कंप्लीट हो जाइए, वरना अदरवाइज ये अगले वीक पे चली जाएगी। आप थोड़ा सा इस फिगर को मत लीजिएगा, इस नेटवर्क को मत लीजिएगा। जस्ट एक स्विच, एक पीसी और एक राउटर लेकर उनको जोड़ लीजिएगा, उनको डायरेक्ट, क्योंकि फिर आप कंसोल की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट उनको इस्तेमाल कर सकते हैं उनके यस सर, ठीक है सर। वो करके। तो आप उसको ट्राई कर लें, ना हो तो यस लेट मी नो, सर, आई विल लेट यू एक्सप्लेन।
अब अगला हम एक सिक्योरिटी का फीचर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लुकमान, एंड दैट इज द फीचर इज, जो कि हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, कि हमारे पर जो पासवर्ड के अटैक्स होते हैं नॉर्मली उसके लिए ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की जाती है। ब्रूट फोर्स का मतलब यह है कि कोई भी वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है आजकल के कंप्यूटर्स बला की पावर रखते हैं, दे कैन सेंड फॉर एग्जाम्पल thousands and thousands of passwords from a dictionary, pick the word from dictionary and send it to you. अभी आप देखना, मैंने इसको दिया SSH, यूजर का नाम, टारगेट, और फिर पासवर्ड में मुझे नहीं आता, मुझे ब्रेक करना है। what I should do, give him a password first for Cisco, then Cisco 123, then Cisco 1, Cisco 2, Cisco 123, blah blah blah, and I can enter these passwords maybe billions in a few minutes. So अगर ये मेरा कंप्यूटर मुझे इसकी इजाजत, मेरा राउटर ये इजाजत दे यूजर को कि तुम मुझे बिलियंस ऑफ पासवर्ड दो, तो जब बिलियंस ऑफ पासवर्ड पर सब मिनट्स में होंगे, इसका मतलब है कि पर मिनट बहुत बड़ी नंबर आएगा मेरी तरफ फॉर ऑथेंटिकेशन। अभी मैंने कहा लोकल ऑथेंटिकेशन, लोकल लॉगिन। तो अगर ये मैं रोकना चाहता हूं, सिक्योरिटी फीचर है, हार्डनिंग करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या, मिसाल के तौर पे अपने पास एक कागज पे, चले मैं, मेरे पास भी व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे मैं शुरू तो क्या था, नहीं किया था, नहीं किया, अभी कर लेते हैं। क्या व्हाइट यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, ओके नहीं किया, चलें जी अब कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल है, व्हाइट बोर्ड। जी, तो मैं अब इसके ऊपर कमांड देना चाहता हूं, मैं एक हार्डनिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, और वो फंक्शन ये है कि अगर कोई भी यूजर, लाजमी तौर पे हैकर, कोई भी थ्रेट एक्टर अगर मेरे राउटर पे 4 अटेम्प्ट्स करे, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप देना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है वो ये इंप्लीमेंट करना चाहता है कि 4 पासवर्ड अगर इस पे अटेम्प्ट किए जाएं, कितने टाइम में, विद इन 2 मिनट्स, लाजमी नहीं, यू कैन से इवन इन 1 मिनट, 30 सेकेंड, वट एवर यू वांट, इन 2 मिनट्स। तो क्या करो, ये करो कि इस यूजर को ब्लॉक कर दो, फॉर 3 मिनट्स, 10 मिनट्स, वट एवर यू वॉन्ट, 3 मिनट्स। अगले 3 मिनट के लिए इसकी कोई कमांड, कोई पासवर्ड नहीं रिसीव किया जाएगा। तो हम ये एक, क्योंकि उसने एहसान उसने यूजर नेम सुना हुआ है कि एहसान है, पासवर्ड तो नहीं पता, ही यूजिंग द ब्रूट फोर्स। तो हम उसको ब्लॉक करने की कर रहे हैं कि अगर कोई भी यूजर 2 मिनट में 4 दफा अपने पासवर्ड भेजे और वो गलत हो, तो इस यूजर को 3 मिनट के लिए ब्लॉक कर दो, 3 मिनट करो, 30 मिनट करो, जो तुम्हारी मर्जी। तो ये भी हार्डनिंग का मेथड है कि अगले कई मिनट तक वो भेजता रहेगा, लेकिन आपका राउटर उनको रिसीव नहीं करेगा, यूं उसका अटैक जाया हो जाएगा, यूं उसका अटैक फेल हो जाएगा, और यही हम चाहते हैं। तो इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम राउटर पे आते हैं, ये है हमारा राउटर, और राउटर पे हम ये काम हम PCA से कर रहे थे, तो हम PCA पे ही रहते हैं, ये RTA है, और यहां से मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाता हूं। देखिए अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट से काम कर रहा हूं, मैं कहां से काम कर रहा हूं, कमांड प्रॉम्प्ट से काम कर रहा हूं, और यहां पे मैं इसको कमांड देता हूं, लॉगिन
लॉग इन ब्लॉक फॉर, अब मैंने कितने मिनट कहा था? 3 मिनट्स। 3 मिनट कितने सेकंड्स के बराबर होता है? 180 सेकंड्स। ब्लॉक फॉर 180 सेकंड्स। कितने अटेम्प्ट्स जो हैं लेट इट बी 4, एंड विद इन कितने टाइम में? विद WITH, विद इन लेट इट बी 2 मिनट्स विच इज 120 सेकंड्स। अब अगर इसके ऊपर गलत लॉगिन की जाए सिर्फ 2 मिनट के अंदर, तो ये उसको 3 मिनट के लिए ब्लॉक कर देगा उस यूजर को, यानी यूजर एहसान को। इन अदर वर्ड्स, इंटर करता हूं, हो गया। एक दूसरा हमने एक एक्शन इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया। एक और चीज हम इस पे और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर आपका यूजर इनएक्टिव हो जाए, मिसाल तौर पे अभी मैं इस पे लॉग इन हूं थ्रू SSH, तो इट्स नाइस, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम चाहते ये हैं कि अगर कोई यूजर खास वक्त के लिए इनएक्टिव रहे तो सिस्टम उसको खुद ही लॉग ऑफ कर दे। इसके लिए कमांड है exec -timeout, लेट इट बी 1 कह देते हैं। अगर 1 मिनट तक कोई आपके डिवाइस के अंदर, हम VTY पे हैं, और सॉरी पहले तो हमें VTY पे जाना चाहिए, यस, किस टर्मिनल पे हैं तो उस पे जाने, इसलिए ये कमांड भी नहीं चल रही थी। गुड। तो अब यहाँ पे मैं अपने उस पे इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस, और इंटरफेस है geek 0/0। ये मैं इस इंटरफेस पे आ गया। ऑल्दो के नहीं, सॉरी इस इंटरफेस पे नहीं, यहाँ से एग्जिट करता हूँ। मुझे जाना है या होना चाहिए किस पे? VTY पे। तो लाइन VTY 0/3 हमने ये रखा था। अब मैं इस पे आ गया वापस, और यहाँ पे मैं देता हूँ कमांड exec timeout 1। 1 मिनट तक कोई कमांड ना दी जाए तो ये मुझे लॉग ऑफ करवा दे, तो एक और फीचर हमने अपने राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अब अगर 1 मिनट तक मैं कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं करूंगा तो ये सिस्टम मुझे खुद ब खुद बाहर फेंक देगा। डज इट मेक सेंस? सर मेरा भी सर यहाँ पे कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है सर। मैंने ये एग्जैक्ट टाइम आउट 6 लगाया हुआ था, तो अभी जब मैं लॉगिन करता हूँ SSH के थ्रू, ये उससे कमांड प्रॉम्प्ट से, तो ये कनेक्शन टाइम आउट रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। तो ये चीज हम चाहते हैं कि अगर आप, मैंने 1 मिनट लगाया ताकि मैं जल्दी से लॉग आउट कर जाऊं, तो मुझे दोबारा फिर SSH करना होगा। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं इसी चीज का कि मेरे सिस्टम ने, देखें जी आ गया, क्या लिखा हुआ आ गया आउटपुट, कनेक्शन टू दिस क्लोज्ड। किसने? बाय फॉरेन होस्ट। फॉरेन होस्ट कौन है? राउटर, RTA, और मेरी प्रॉम्प्ट क्या आ गई? C, यानी मैं वापस अपने PCA पे आ गया हूं। अब अगर मुझे दोबारा इसके पास जाना है तो मैं दोबारा लिखूंगा SSH-L यूजर एहसान और टारगेट 172.16.1.1, इंटर। पासवर्ड मांग रहा है जो कि सिस्को है, और मैंने दिया अगेन ऑन RTA। जी लुकमान, आई एम बैक ऑन दी RTA। 1 मिनट के मुझे फिर माफ करेगा, मैंने जानबूझ के 1 मिनट रखा है ताकि जल्दी जल्दी हो मेरे लिए। तो ये एक फीचर है सिक्योरिटी का कि बाज़ औक़ात आप अपने कंप्यूटर पे ऊपर लाजमी तौर पे सेंसिटिव काम कर रहे हैं और आप वॉशरूम चले जाते हैं, आप चाय पीने के लिए चले जाते हैं, कोई मेहमान आ जाता है, आप थोड़ा उसके साथ अपने ऑफिस तक चले जाते हैं,
और पीछे से कोई और बैठ के टका टक टक जितनी कमांडें भी देगा वो सारी कमांड्स आपके जिम्मे में आएंगी, क्योंकि आपका यूजर उसके ऊपर, एहसान यूजर उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो ये तो हमने कुछ हार्डनिंग के काम किया ऑन ए राउटर। अब हम यही काम स्विच में भी करना चाहते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने बड़े आराम देखें, मुझे फिर उसने निकाल दिया, आरटीए ने फिर निकाल दिया मेरी स्क्रीन पे। अगर आप देखें तो फिर कहता है क्लोज्ड बाय, कनेक्शन क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। मैं भी यही चाहता था, क्योंकि अगले काम में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है स्विच में, बाकी कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि पोर्ट्स को डिसेबल करना। तो मैं इसलिए इसको अब थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं स्विच के ऊपर, इसको मैं अब फारग कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं और स्विच पे चला जाता हूं। स्विच की CLI पे गया तो ये कहता है कि जी चेंज स्टेट टू अप। जी बिल्कुल, मैं यहां पे आया, सॉरी, ये जी मैं स्विच पे हुआ हूं। पहला काम ये क्या कह रहा है कि क्लिक ऑन, उसका नाम तब्दील कर दो, SW1 कर देते हैं। तो यहां पे देंगे हम कॉन्फ एनेबल, ENABLE। यहां पे हम दे देते हैं कॉन्फ टर्मिनल, और यहां पे हम दे देते हैं होस्ट नेम, और इसने कहा कि SW1 करो, हम भी यही चाहते हैं। चलें जी, SW1, सॉरी, SW1 हो गया जी, इसका नाम SW1 हो गया। अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं शो इंटरफेसेस, शो नहीं, एग्जिट करता हूं और यहां देता हूं शो इंटरफेसेस, तो ब्रीफ देता तो बेहतर था, लेकिन चलें, सब कंप्लीट वो दिखाएगा। तो जितनी भी इसकी इंटरफेसेस हैं, मिसाल के देखें, अगर मैं फास्ट इथरनेट 0-4, आपको पता है ना स्विच है, इसकी तो 24 पोर्ट्स हैं, तो ये हर एक के बारे में मुझे बता रहा है कि ये डाउन है, इसका प्रोटोकॉल भी डाउन है, और ये डिसेबल्ड है, इसका BIA यानी कि मैक एड्रेस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन मेरे साथ ये शेयर कर रहा है। ये हाफ डुप्लेक्स मोड में है, ये कीपिंग लाइव में है, ब्ला ब्ला। लेकिन मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूं, मैं जरा इसको ब्रीफ करके देखना चाहता था। अब मैंने पूरा का पूरा अपने लिए दर्द सर खोल लिया, लेकिन नॉट एन इशू। लेकिन जो चीज मैं इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो था VLAN 1। अगेन VLAN 1 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, VLAN 1 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। तो मैं इस VLAN के ऊपर, याद रखें कि अगले कोर्स जब आप स्टार्ट करेंगे तो हम एक ही स्विच के ऊपर मल्टीपल VLANs बनाएंगे। लेकिन अगर आपने ना बनाए हो तो ऑल द इंटरफेसेस आर पार्ट ऑफ ए सिंगल VLAN व्हिच इज कॉल्ड VLAN 1। दिस इज द डिफॉल्ट VLAN। अब अगर मैं इसको दोबारा कमांड दूं, शो इंटरफेस ब्रीफ, इसमें नहीं है, तो शो इंटरफेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ सिर्फ होता है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। Ladies and gentlemen, you can see here the what I wanted to show you. Only the fast Ethernet, this is up, क्योंकि स्विच की पोर्ट नंबर 1 के ऊपर PCA कनेक्टेड है। 2 से लेकर 23 तक, 21 तक आपको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, 23, 24 फिर अप है, 20 नहीं सॉरी, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट नंबर, ये गीगाबिट इंटरफेस जो है वो अप है, जो कि राउटर के साथ लगी हुई है, बाकी तमाम इंटरफेसेस डाउन है। इवन VLAN 1 भी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, कोई IP नहीं है, डाउन है। तो अब वो मुझे ये कहता है, लेडी तो हमसे शायद उसकी लाइट वगैरह को इशू होगा, शी इज नॉट हियर। तो अब हम इस वीक, वो मुझे कह रहा है कि कॉन्फ़िगर एन IP एड्रेस ऑन द स्विच, कि VLAN 1 के ऊपर IP दो और इसको एनेबल करो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। इसको कौन सा IP दूं? जो मुझे टेबल में दिया गया है 172.16.1.2। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
I am here and I gave the command first conf terminal, तो I am on the global configuration. अब मैं जाऊंगा VLAN पे, तो इंटरफेस VLAN 1, कौन सा VLAN? VLAN 1, ये मैं जी VLAN 1 पे चला गया। अब आपको नजर आ रहा है IF, यानी आई एम ऑन द इंटरफेस नाउ। अब इस इंटरफेस के ऊपर मैं कमांड देना चाहता हूं, वही पुरानी कमांड आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस 172.16.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.255.0 इंटर किया, इसको आईपी एड्रेस मिल गया। और अब ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है तो दे नो शटडाउन और इंटर कर दें, तो देखें आपको अब नजर आ रहा है कि चेंज स्टेट टू अप। अगर फिर भी आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे तो एग्जिट करते हैं और यहां से भी एग्जिट करते हैं और यहां पे देता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अब आप जेंटलमैन देख सकते हैं इसका फास्ट ईथरनेट 0/1 भी अप है, जो कि कनेक्टेड है विद पीसीए। इसकी अगर आप गीगाबिट पोर्ट देखें तो ये भी अप है और ये कनेक्टेड है राउटर के साथ, और इसका VLAN 1 भी अप हो गया है, एक चीज और भी कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि आप इसके गेटवे भी इसको दे दें, तो दे देता हूं जी, मुझे कौन सा मसला है। एंड द कमांड इज आईपी पहले जाऊंगा कॉन्फिग टर्मिनल, फिर जाऊंगा इस VLAN पे, तो इंटरफेस VLAN 1 इंटर, तो VLAN पे चला गया। यहां पे इसको डिफॉल्ट गेटवे देना है, तो आईपी डिफॉल्ट गेटवे, I think there is no need to go into the IF की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में इज इनफ। आईपी डिफॉल्ट और क्या डिफॉल्ट गेटवे था 172.16.1.1 जो कि हमारा राउटर है, और इंटर कर दें, गेटवे भी मिल गया इसको। अब अगर आप इसको गेटवे भी मिल गया तो हमारा ये HD पॉइंट भी हो गया। अब अगले पॉइंट में कहता है कि सिर्फ आप इसकी 2 पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फास्ट ईथरनेट विद दी पीसीए और स्विच 1 और राउटर के साथ गीगाबिट 0/1, ये 2 पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पोर्ट्स कितनी है 24+2 यानी 26। क्या करें, बाकी पोर्ट खुली रहने दें, इट इज अ बिग डेंजर, सिक्योरिटी वाइज नॉट अलाउड। क्या करें, कहते हैं जो इस्तेमाल नहीं करो बंद करो उनको, जो दरवाजे इस्तेमाल नहीं हो रहे, खिड़कियां इस्तेमाल नहीं हो रही, क्लोज देम, दीज आर सिक्योरिटी ब्रीच, दीज विल बिकम वल्नरेबिलिटी फॉर यू। तो लुकमान कहता है डिसेबल ऑल अनयूज्ड पोर्ट्स। तो एक तरीका तो यह है कि मैं एक एक पोर्ट पे जाऊं और उनको ब्लॉक करता जाऊं, अगर करें तो ठीक है, इट वर्क्स। कैसे, मिसाल के तौर पे यहां पे 2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2, क्योंकि 1 को तो नहीं बंद करना, 0/2, तो मैं इंटरफेस पे चला गया, यहां पे देते हैं शटडाउन, इंटर। देखिए आपका आ रहा है चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो दिस इज डन, दिस कैन बी डन लाइक दिस। सर तो सब ऑलरेडी डाउन है सर जी, By ये default. अगर आप केबल लगा दें जस्ट दे विल बी कम अप। इसका मतलब है कि जस्ट आप देखें ना, इसको भी तो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ केबल लगाई, इस यहाँ पे एक और आप इसमें मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगर मैं एक डिवाइस यहाँ पे लेता लुकमान और उसको केबल के जरिए यहाँ लगाता, ये आप हो जाती खुद ब खुद ही।
लेकिन अब ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटरली इसको डाउन कर दिया है। अब अगर मैं दोबारा शो इंटरफेस ब्रीफ करूं, यहां से मैं एग्जिट करता हूं, मतलब सर अगर आप अब आपने मैनुअली जब डाउन कर दिया ना, मतलब ऑफ कर दिया, अगर हम अब बाय वायर आप कनेक्शन कर दे तो फिर वो ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। नहीं होगा। दैट इज रिक्वायर्ड कि अगर आपका स्विच कहीं पे दीवार के साथ लगा हुआ है, कोई भी बाहर का बंदा आए, अपनी केबल यहाँ पे लगाए और कहे जी कार स्टार्ट में को, आप कहते हैं ना दाहो दाहो ना प्रेदमा, दिस इज ए दैट गाय कैन बी ए हैकर, दैट पर्सन कैन बी ए थ्रेट एक्टर, how you are allowing to just you should bring a 4 feet UTP cable and plugged in your network, not desired. Agreed? जी सर बिल्कुल। Agreed? ठीक है। तो एक तरीका तो ये कि एक एक पोर्ट के ऊपर जाके मैं काम करूं, लेकिन टाइम ले रहा है ना, तो एक और कमांड हम सीख लेते हैं कि हम रेंज दे दें इसको कि यहां से लेकर तमाम को सेलेक्ट कर लो। अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट की 0/2 को सेलेक्ट कर लो, फिर मैंने उसको कहा इसको बंद कर दो। तो अब मैं इसको कमांड देता हूं इंटरफेस रेंज, इंटरफेस, यहां से तो निकल जाऊं कि ये तो मैं अभी इंटरफेस 0/2 पे हूं, एग्जिट करता हूं और यहां पे इसको कहता हूं इंटरफेस रेंज, और रेंज को दे देता हूं फास्ट इथरनेट 0, और कहां से 3 से लेकर 2 तो मैंने बंद कर दिया हुआ है ना, 3 से लेकर 24 तक, 3 से लेकर 24 तक। और इसके अलावा गीगाबिट पोर्ट 0/1 के ऊपर तो राउटर लगा हुआ है, 0/2 भी ले लो। मैंने इसको कहा कि 3 पोर्ट से लेकर 24 पोर्ट जितनी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है सबको सेलेक्ट कर लो, और इसके साथ साथ कॉमन के साथ इसको गया कि गीगाबिट पोर्ट नंबर 2 को भी सिलेक्ट कर लो, और इंटर कर दिया सबको। अब देखें मेरी जो प्रॉम्प्ट है वो तब्दील हो गया, वो अब कॉन्फिग डैश इफ नहीं हुआ, वो कॉन्फिग डैश इफ डैश रेंज हो गया, रेंज हो गया, यानी आप उसने एक रेंज ऑफ इंटरफेसेस को सेलेक्ट कर लिया है। और मैं इसे कहता हूं शट डाउन कर दो इनको। तो दिस इज ए देखिए सबको इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन कर दिया, एक ही बारी में सारे गए, सारे बंद हो गए। तो सिर्फ अब 2 पोर्ट्स ओपन रह गई, एक जो पीसीए के साथ लगी हुई है और एक जो कि राउटर के साथ लगी हुई है, बाकी तमाम पोर्ट्स क्लोज हो गए। कुछ बात समझ आई? यस सर बिल्कुल। गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में कहता है, जो कि एफ है, कहता है कि आप इसके प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दो, जितने भी पासवर्ड यहां आए वो इनक्रिप्टेड हो। हमने कहा था सर्विस पासवर्ड, यहां से पहले निकलें, एग्जिट करें, आप यहां पे आ गए और यहां पे पासवर्ड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन दे दें, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, आपके तमाम पासवर्ड क्या हो गए, इनक्रिप्ट हो गए। तो आपने अभी दिए नहीं, वो भी इनक्रिप्ट होंगे। फिर कहते हैं सेट ए स्ट्रॉन्ग सीक्रेट पासवर्ड ऑफ यूर चॉइसिंग। तो हम इसके SW1 के ऊपर कंसोल पे भी, लेकिन क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं उसको SSH को, इसलिए हम इसके एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एनेबल पासवर्ड, चाहे तो कंसोल पे भी लगा सकते हैं, इसके भी एनेबल पासवर्ड, और सीक्रेट पासवर्ड हम इसका भी रख देते हैं सिस्को। एनेबल का हमने वहां, तो ये सिस्को का पासवर्ड इसके ऊपर हो गया। फिर हम कहते हैं कि इसकी डीएनएस को, लुकअप को ब्लॉक कर दो, डिसेबल कर दो। तो नो आईपी डोमेन no IP domain lookup, no IP domain lookup।
कॉन्फ़िग में हूँ, तुम क्या नो आईपी डोमेन लुकअप, अभी डोमेन को लुकअप भी नहीं करने देगा, ये कमांड भी हो गई इसके ऊपर। नेक्स्ट हम इससे ले रहे हैं कि हमें कहता है कि क्या करो, ये कहता है कि इसको डोमेन दे दो जिसका नाम आप हमने क्या रखा था, www.com। तो हम आप इसको दे देते हैं आईपी डोमेन नेम www.com हो गया। फिर ये कहता है कि क्रिएट ए यूजर ऑफ योर चॉइसिंग विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो मैं लिखता हूं यूजर नेम एहसान, पासवर्ड जिसको हो गया। फिर ये कहता है कि RSA की जनरेट करें। तो मैं इसको कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन जनरेट की, जनरेट मानता RSA जनरेट क्रिप्टो की, जनरेट क्रिप्टो CRYPTO क्रिप्टो की जनरेट RSA। मुझे फिर पूछेगा कि कितने उसका लेंथ रखूं, मैं कहता हूँ 512 ही रख लो, और इसने मेरे लिए की भी जनरेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप है कि ये मुझे कह रहा है कि क्या करो, लाइन VTY पे जाओ। तो मैं यहां पर भी इसको कहता हूं लाइन VTY 0 to 3। तो मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि कॉन्फ़िगर ऑल VTY लाइंस फॉर SSH। तो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH यहाँ पे हो गया। और साथ ही ये कहता है कि एग्जिट कर दो, ये एग्जिट कर गया। अब मैं इसके ऊपर भी PCA से आता हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो जेंटलमैन ये मेरा PCA है, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, और यहाँ पे मैं C पे हूं, आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ लिखता हूं SSH -L, और यूजर है एहसान, और पासवर्ड है इसका, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, टारगेट है 172.16.1.2। राउटर 1 था .1, स्विच .2 है। देखें जी पासवर्ड मांग रहा है, सिस्को देता हूं, इंटर की, सॉरी स्विच पे आ गया। अब मैं बैठा हुआ PCA के ऊपर हूं, काम मैं इसके ऊपर कर रहा हूं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन टास्क, जो कि हम एक कंप्यूटर पे बैठ के दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे जाके अपने काम कर सकते हैं। लास्ट आइटम इस पे जो रह गया वो ये है कि क्या कहता है, इसके ऊपर भी वो कमांड लगा दो कि अगर ये टाइम आउट, क्योंकि दिस इज सेंसिटिव नाउ, कि अगर ये लेट करें 1 मिनट तक कोई ना दे तो इसके भी जो SSH कनेक्शन है वो ब्रेक कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। तो उसके लिए हमने कमांड क्या दी थी, एग्जिट टाइम आउट। तो हम यहाँ पे भी इस इंटरफेस पे जाते हैं, which is enable। पहले ये कमांड मैं देना चाहता हूं फ्रॉम रिमोटली, सॉरी enable पे पासवर्ड हमने दिया था सिस्को, ये सिस्को के जरिए मैं यहाँ पहुंच गया। कॉन्फ टर्मिनल यहाँ पे पहुंच गया, लाइन VTY 0 to 3, तो VTY पे आ गया। यहाँ पे मैं देता हूं exit टाइम आउट 1, और इंटर कर देता हूं। इतनी देर में आपसे गपशप लगाता हूं, चंद मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, और इस 1 मिनट के अंदर मुझे चाहिए कि ये सिस्टम मुझे बाहर निकाल दे, टाइम आउट करवा दे। तो अगर
ये चीजें आज आपने सीख ली तो आपने स्विच को भी राउटर को भी थ्योरी को छोड़ के प्रैक्टिकली आपने ये चीजें जो कि आपने 4 साल मुख्तलिफ कोर्सेज में नहीं देखी वो आपने यहाँ पे देख ली, जो कि आपको अगर आप किसी भी ऑपरेटर के साथ काम करेंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी एंड यू विल एंजॉय। और आपका जो ऑपरेटर है वो भी खुश होगा कि मैंने जो बंदा हायर किया है वो लर्नड है, वो स्किलफुल है। तो आपका कोई क्वेश्चन है? देखिए अभी मैंने राउटर से बैठ के पीसीए से आप इवन स्विच, अभी मैं स्विच के ऊपर भी लॉग इन करूं क्योंकि सीएलआई मुझे जालम नहीं दे रहा। मैं देखें मुझे इसने निकाल दिया, मुझे इसने 1.2 से निकाल दिया, मैं दोबारा सी पे आ गया, पीसीए पे आ गया, मैं अपने मैनेजमेंट पीसी पे वापस पहुंच गया हूं इन अदर वर्ड्स। जी लुकमान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, सही है सर। ठीक है, तो अब Yes, मैं sir. उम्मीद करता हूं कि आप वीकेंड के दौरान इस टास्क को बार बार करेंगे और इसको समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप यहीं पे समझ गए होंगे काफी हद तक, लेकिन फिर भी स्किल उस वक्त आती है जबकि आप प्रैक्टिस करते हैं। इज इट क्लियर फखर एंड लुकमान? Yes, sir, बिल्कुल। ठीक है, सो इंशाल्लाह सी यू देन नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे एंड इंशाल्लाह विल बी कंटिन्यूइंग इट। लुकमान क्या है कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, ये उसमें ट्राई कर लूंगा।